एलबी नगर एसीपी श्रीधर रेड्डी ने कमिश्नरी क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने को लेकर कारगर कदम उठाए हैं। उन्होंने हालांकि उनका अधिकार क्षेत्र नहीं होने पर भी एक विशेष अधिकार के तहत इब्राहिमपट्टनम में रियल्टर की हत्या की गुत्थी बहुत आसान तरीके से सुलझाई। उन्होंने आरोपियों को बड़ी ही चालाकी से गिरफ्तार किया और रिमांड पर भेज दिया है। हत्या के 48 घंटे के अंदर ही पुलिस ने मुख्य आरोपी मतर रेड्डी समेत खाजा मउद्दीन, बुरी भिक्षापति, सैयद रहीम और समीर अली व राजू खान को गिरफ्तार कर लिया। हत्या में प्रयुक्त 2 बंदूकों को बनाने वाले चंदन सिबन और सोनू रे को गिरफ्तार कर लिया गया और इन दोनों आरोपियों को लेकर बिहार की स्पेशल टीम को चौंकाने वाली खबर मिली है। राजाकोटा पुलिस कमिश्नरेट में एलबी नगर डिवीजन काफी मायने रखता है और चूंकि ये सिटी आउटस्कर्ट के साथ बहुत ही डेवलपिंग एरिया है और एसीपी पी श्रीधर रेड्डी साहब हमारे साथ थे, उनसे बात करते हैं कि ये जो डिवीजन है पुलिसिंग के लिहाज से कितना इम्पोर्टेंट है और खासकर जो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है उसको पुलिस कैसे हैंडल करती है। सर, as you said, it is right. The cosmopolitan culture is prevailing there. LB Nagar is a well-developed area. The people from all over the country stay here, and every day new people come here and staying here. So, of course, there is no such a problem that people from other places are coming and committing crimes. There is no such problem. Law and order is well in control. Police are taking care of everything, and if the crimes are committed, we are catching them, detecting them immediately. There is no, that means there is almost in all sections of people, we develop a sense of security in them. Now people are feeling safe and security, and they are having good relation with public. They have confidence in police. दोनों आरोपियों के खिलाफ बिहार में कई मामले दर्ज है। दोनों स्थानीय जेल में बंद हैं। खाली हाथ लौटी राजकोंडा पुलिस पीटी वारंट पेश करने और दोनों आरोपियों को हैदराबाद लाने की व्यवस्था करी है। रियल्टर श्रीनिवास रेड्डी और राघवेंद्र रेड्डी को इब्राहिमपट्टनम के करनगुड़ा में बंदूकधारियों ने मार डाला है। Sir, what message you want to give there, especially to those areas where new occupants are coming regularly from North Indians and from North India, and so many residential zones are developing in this locality, in this division. For what precautions you suggest to people? Of course, anyone can come here and anyone can buy or rent, yes, take houses for rent and stay here. There is absolutely no problem. Anyone can come, but if anyone is found in suspicious activities, if someone is indulging in criminal activities, then they will come to our notice. We have a strong network. We have informants everywhere. If somebody does something, it immediately comes to our notice. 100% I can say that there is no problem or no one is scared of some newcomers or something happens like that. 100% there is no problem. Every day, as you said, newcomers are coming. Some North Indians can come, and other people can, other states also come and stay here. But with that, I don't expect some problem comes or occurs. Especially for those who are unidentified, and usually the residents who are residing for a long time, or local residents, they used to have some fear due to their identity. Some local apartments, if somebody found suspicious activity in his neighboring flat, what should they should done? Actually, when giving rent for their houses, the house owners have to take the complete particulars from the persons. Yes. So earlier also we conducted some awareness programs, and by various means we explained to the house owners, whenever they give rent, there some pro formas also there. They were circulated to them, and absolutely almost every time
whenever the house owners are giving rent their flats or houses to new persons, they are obtaining their identity proofs and everything. That is not a big issue now. दोहरे हत्याकांड के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पुष्टि करी है कि इन हत्याओं के लिए मत्तारेड्डी गिरोह जिम्मेदार था। जांच में पता चला है कि मत्तारेड्डी ने सुपारी गिरोह की मदद से हत्या को अंजाम दिया था। नतीजतन मत्तारेड्डी, नवीन और 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। Sir, LV Nagar zone is highly developing area. Land prices are surging here in this locality. It raises some land grabbing, land disputes kind of thing. One Ibrahimpatnam case was very famous, last year case. What exactly, how the police tracked this case, Ibrahimpatnam especially case? Actually, Ibrahimpatnam case, the investigation of that case, which you are asking, was handed over to me. Though I am not holding the area of that, I am the ACP of LB Nagar area. But due to some reasons, the investigation of that case was transferred and given to me. It was a double murder case. Matareddy, kingpin in that case, he purchased some 4 plots in an old venture, and after going there, he wanted to occupy the so much empty land which was there without care. He identified few plots which there were no owners or no persons to take care of those plots. So he wanted to occupy that land and to grab that land. Meanwhile, the original owners are some other people originally who gave that land for making venture. They entered into that and they handed over that land to some other person for developing into an agricultural land. So their disputes arise between this fellow and that fellow, and gradually they grew, and as though there were they did not complain against each other, there were no cases, but there was altercation of words between them, and heated arguments took place between them. And later, as that other person is coming across to this person Matareddy in occupying that land, he decided to eliminate him. For that, he formed a team. He formed a Muta team and sent his persons to Bihar and got consummate pistols from there, and he organized, he hatched a plan, he conspired with his henchmen, and he got eliminated 2 persons on March 1st last year. So after once the investigation came to me, I took up the investigation, and later we completed the investigation within the stipulated time of 90 days, and we ensured that these accused did not jump out on the bail. So that what happened, when the accused are inside the prison, they are treated as UT prisoners, under trial prisoners. So when there are UT prisoners, immediately courts will fix the schedule for the trial and conduct the trial immediately. If they jump out on the bail, generally trial will take, depending upon the pendency of the courts, it will become late. If trial if the trial is not commenced or conducted with immediately after filing the charge sheet, what happens? After 2 or 3 years or 4 years, it will the memory of the witnesses will fade away, and if the accused jump out on the bail, if they come into society, there is a chance of threatening the accused or inducing the accused, threatening the witnesses or inducing the witnesses. Everything may occur, but as we ensured that these accused are did not go out on the bail, so court fixed the trial and conducted the trial, and almost it is in the going to be completed within short time, and there is all possibility that they will get conviction. So by getting conviction to them, will get a strong message will go to the criminals and other land grabbers.
राजकोंडा पुलिस आयुक्तालय के एलबी नगर डिवीजन में अपराध वृद्धि हुई है और पिछले साल की तुलना में इस साल अपराधों की संख्या बढ़ गई। वर्ष के दौरान दर्ज किए गए मामले, कानून और व्यवस्था के लिए किए जा रहे उपाय, सीसीटीवी की व्यवस्था और विभिन्न पहलुओं का विवरण दिया गया और पिछले साल की तुलना में इस साल अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। वहीं साइबर अपराध में भी वृद्धि हुई है। सबसे ज्यादा सड़क हादसे और नशे के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। हत्या और अपहरण के मामलों का प्रतिशत घट गया है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में वृद्धि हुई है और संपत्ति संबंधी अपराधों में वृद्धि हुई है। बलात्कार के मामलों में, दहेज हत्याओं में, धोखाधड़ी में की कमी आई है। गुटखा परिवहन के मामलों में कमी आई है और सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों में कमी आई है। डिवीजन क्षेत्र में गांजा की रोकथाम के लिए प्रतिदिन छापेमारी की जा रही है। अन्य महीनों की तुलना में दिसंबर माह में सबसे तस्करी हुई है और एनडीपीएस एक्ट के मामलों में लोगों को गिरफ्तार किया गया। महिलाएं शिकायत दर्ज कराने के लिए साहसपूर्वक आ रही है और यह एक बहुत अच्छा विकास है। सार्वजनिक स्थानों पर डीजे की अनुमति नहीं है। शोर का स्तर 45 डेसिबल से कम रखने का निर्देश दिया गया है। किसी भी परिस्थिति में अश्लीलता, अश्लील वस्त्र और अश्लील नृत्य की अनुमति नहीं है। जोड़ों के लिए आयोजित विशेष आयोजनों में अवयस्कों को अनुमति नहीं दी जा रही है। प्रबंधकों को उनकी उम्र की पुष्टि करने को कहा गया और कार्यक्रम स्थल पर आने वाले लोगों को सीसीटीवी में रिकॉर्ड होने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। रिकॉर्डिंग के उचित रखने को कहा गया और सभी पब, शराब की दुकानें, बार और रेस्टोरेंट निर्धारित समय के अनुसार बंद करने के आदेश दिए गए। अनुज्ञापतिधारियों को समय समय पर शर्तों का पालन करने के निर्देश दिए गए। तेलंगाना अड्डे में बीआरएस पार्टी को सबसे पहले कौन हराएगा? अप्रत्याशित रूप से उभरी कांग्रेस, नई टीम के साथ बीजेपी। राजनीतिक चालें चलने में बेबाक केसीआर ने सरकार की रफ्तार भी बढ़ा दी। कांग्रेस को मैदानी स्तर पर मजबूत करने के लिए वरिष्ठ कदम उठा रहे हैं और बीजेपी नेतृत्व बदलने और नई टीम के साथ चुनाव लड़ने पर भी विचार कर रही है। तेलंगाना में चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्म हो रहा है। सभी प्रमुख पार्टियां अपनी रणनीति को धार दे रही है और यदि कार्यक्रम के अनुसार यह एक और वर्ष होगा, यानी अगले 200 दिनों में चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने तेलंगाना चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी बड़ी पार्टियां इस रणभूमि को जीतकर सत्ता पर कब्जा करने की रणनीति बना रही हैं। बीआरएस, जिसने जीत हासिल करी और एक आंदोलनकारी पार्टी के रूप में सत्ता संभाली है, एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई और बीआरएस तीसरी बार जीत हासिल कर यह साबित करने की कोशिश कर रही है तेलंगाना में उसे कोई हरा नहीं सकता। कांग्रेस और बीजेपी इस बार सत्तारूढ़ बीआरएस को सत्ता से हटाने के लिए प्रयास कर रही है। तेलंगाना में चुनावी सरगर्मी तेज है। अगले 6 महीने में विधानसभा चुनाव होंगे। इस चुनाव को जीतने के लिए प्रमुख पार्टियां अपनी रणनीतियां तेज कर रही हैं। ऐसा लगता है कि बीआरएस सरकार दर्शक समारोह के नाम पर पहले ही चुनावी युद्ध के मैदान में उतर चुकी है। पार्टी अध्यक्ष केसीआर चुनाव के लिए पार्टी केडर को तैयार करने के लिए रणनीतिक कदम उठा रहे हैं। केसीआर की रणनीति को भांपते हुए कांग्रेस भी ऑपरेशन आकर्षक के साथ चुनाव की तैयारी में है। कर्नाटक नतीजों से मिले उत्साह से असाधारण रूप से उभरी तेलंगाना कांग्रेस का तेलंगाना में भी वही जोश दिखाने को बेताब है। चुनाव के लिए नई टीम तैयारी कर रही है। बीआरएस उन वरिष्ठ नेताओं को तैनात करने की योजना बना रहा है जो रणनीतियों को पूरी तरह से जानते हैं। जैसे जैसे तीनों पार्टियां चुनाव को लेकर रणनीति बना रही है, वैसे वैसे कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है। बीआरएस तेलंगाना विकास के नारे के साथ ही हैट्रिक लगाने की योजना बना रही है। वह तीसरी बार जीत हासिल करने और यह साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है। वह तेलंगाना में हारी नहीं है। बीआरएस प्रमुख केसीआर ने लगातार 2 बार सत्ता में रहने के बाद स्वाभाविक विरोधी लोकप्रियता को नियंत्रित करने का फैसला किया है। केसीआर जिलेवार राजनीतिक चाल चलकर और केडर को किस तरह की रणनीति लागू करने का निर्देश देकर ताकत दिखा रही है।
केसीआर ने जनता के विरोध का सामना कर रहे विधायकों की पहचान कर ली है और उनकी जगह लेने के लिए उम्मीदवार तैयार कर रही है। बीआरएस पार्टी के सूत्रों ने कहा कि मौजूदा विधायकों में से कम 30 दोबारा टिकट दिए जाने की स्थिति में नहीं है। विधायकों की पिछली बैठक में सीएम केसीआर द्वारा की प्रमुख टिप्पणियां इसका मुख्य आधार है। चूंकि चुनाव में अभी कई साल बाकी है, इसलिए जनता का विरोध झेल रहे विधायकों को जनता के बीच जाकर सकारात्मकता बढ़ानी चाहिए और यह स्पष्ट है कि बीआरएस रणनीतिक कदम उठा रही है, क्योंकि सीएम ने चुनावी तैयारियों के तहत ये प्रमुख टिप्पणियां करी हैं। राजनीतिक चालें चलने में बेबाक केसीआर ने सरकार की रफ्तार भी बढ़ा दी है और विकास और कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देने का दावा करने वाली सरकार अगला चुनाव जीतने के लिए मौजूदा योजनाओं के अलावा नई योजनाओं की घोषणा कर रही है। सीएम केसीआर ने दिव्यांगों की पेंशन में 50 रुपए की बढ़ोतरी का फैसला किया है और इसी के अलावा केसीआर ने पिछले कैबिनेट में हैदराबाद और रंगारेड्डी झीलों को प्रभावित करने के लिए 111 जियो को हटाने के निर्णय लिए। उन्होंने लगातार जिलों का दौरा कर विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, यह कहते हुए कि उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा और बिजली के क्षेत्र में पहले ही महत्वपूर्ण प्रगति करी। मुख्यमंत्री केसीआर भविष्य में की जाने वाली योजनाओं की घोषणा करते समय लोकप्रिय मंत्र का जाप कर रही है। चुनाव के ध्यान में रखते हुए सीएम केसीआर द्वारा किए गए वादों से बीआरएस केडर स्मार्ट लग रहा है। पिछले चुनाव के दौरान जिस सीएम ने सभी को टिकट दिए थे, नए टिकटों की आस लगाए बैठे लोग मौजूदा सेटिंग क्षेत्र भ्रमण शुरू कर चुनावी माहौल को ग्रामीण स्तर तक ले जा रहे हैं। सीएम केसीआर की घोषणाओं और दौरों के साथ बीआरएस तीसरे चरण के चुनाव में उतर गई है। कांग्रेस भी जमीन तैयार कर रही है। पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी, सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्का और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस को मैदानी स्तर पर मजबूत करने के लिए कदम उठा रही है। बीजेपी नेतृत्व बदलने और नई टीम के साथ चुनाव लड़ने पर भी विचार कर रही है और इसी दिशा में चर्चा शुरू हो चुकी है। साइबर स्पेस रेगुलेटर सीएसी ने 2 महीने तक सोशल मीडिया पर नजर रखता है और इसी माध्यम से 14 लाख पोस्ट डिलीट किए गए हैं। करीब 67,000 अकाउंट डिलीट करे गए। सीएसी ने खुलासा किया है कि जो लोग सोशल मीडिया के जरिए अधिकारियों के नाम पर गलत सूचनाएं फैलाने, अवैध मुनाफा कमाने और फर्जी खाते खोलने जैसे काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और इसी पृष्ठभूमि में जानिए कि सरकार किस तरह इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले नागरिकों को बांध रही है। चीनी सरकार पिछले कुछ वर्षों से ग्रेट फायरवॉल नामक एक परिष्कृत प्रणाली का उपयोग कर रही है। यह सिस्टम उस देश के नागरिकों को विदेशी वेबसाइटों और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने से रोकता है। यह फायरवॉल फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को भी ब्लॉक कर सकता है, जो दुनिया भर के कई देशों में उपलब्ध है और यह इंटरनेट पर पाई जाने वाली सभी सूचनाओं को फिल्टर करता है। ताकि चीनी नेटिजन्स को यह न मिले। चीन ने अपने नागरिकों के लिए विदेशी सोशल मीडिया पर निर्भर रहने के बजाय अपना सोशल मीडिया विकसित कर लिया है। वीचैट, वीबो, क्यूक्यू प्लेटफॉर्म इसी श्रेणी के हैं, लेकिन इन पर सरकार का नियंत्रण होता है। अगर कोई सीमा पार करता है तो इसकी सूचना तुरंत सरकार के पास जाती है। ऑनलाइन उपलब्ध सामग्री को सेंसर और मॉनिटर करने के लिए बड़ी संख्या में सामग्री मध्यस्थों की नियुक्ति की जाती है। वे आपत्तिजनक पाए जाने वाले पोस्ट को तुरंत हटा देंगे। कंटेंट सेंसरशिप भी ऑटोमेटेड सिस्टम की मदद से की जाती है। सरकार की आलोचना करने वाले, राजनीतिक पोस्ट और दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले
पोस्ट को तुरंत चिन्हित कर ब्लॉक कर दिया जाएगा। और इन निष्कासनों में मानवाधिकार, तिब्बत, ताइवान, तियानमेन स्क्वायर और अधिकारियों के निर्णयों को चुनौती देने वाली पोस्ट शामिल है। कई लोग ऐसे हैं जो असली नाम की जगह फर्जी नाम से ही खाते खोलते हैं और गलत व्यवहार करते हैं। ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए असली नाम से सोशल मीडिया अकाउंट होना जरूरी है। खाता खुलवाने के लिए पहचान पत्र अनिवार्य है। ऐसा लगता है कि अत्यधिक व्यवहार करने वालों पर रोक लगा दी जाए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने गलत सूचना फैलाने वालों की पहचान करना आसान बना दिया है। चीनी अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर व्यापक निगरानी रखी है और कुछ कीवर्ड का उपयोग करके जानकारी को फिल्टर करना, तस्वीर को पहचानना, नेटिजन्स की गतिविधियां पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम के साथ नजर रखी जा रही है। उससे देश की सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले और समाज में शांति फैलाने वाले पोस्ट को जल्दी से चिन्हित कर चेक किया जाता है। ये जानकर चीन में इतने सारे नियम हैं, बहुत से लोग सेल्फ सेंसरशिप का अभ्यास करते हैं। उनके सामने व्यक्ति और संगठन सावधान हो रहे हैं और संवेदनशील विषयों का जिक्र सोशल मीडिया पर करने से कतरा रहे हैं। उन्हें डर है अगर वे राजनीतिक बातचीत करेंगे तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। बीजिंग शुरू से ही ऐसे नागरिकों की पहचान करता रहा है और उन्हें किसी भी तरह की जानकारी फैलाने के लिए गिरफ्तार करता रहता है जो उन्हें परेशान कर सकता है। कम्युनिस्ट सरकार और सेना से संबंधित पोस्ट वायरल होने पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। हाल ही में आईटी मंत्री केटी रामाराव ने बताया कि तेलंगाना सरकार टियर 2 शहरों में आईटी परिचालन का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। और देखा जाए तो इसी के तहत सिद्दीपेट में आईटी टावर का उद्घाटन 15 जून को किया जाएगा और इसी के बाद जुलाई में निजामाबाद में और अगस्त में नलगोंडा में एक और आईटी टावर का उद्घाटन किया जाएगा। आइए यहाँ पर इस विषय को विस्तार से जानते हैं। 6 मई को महबूब नगर में एक आईटी टावर का उद्घाटन किया गया और मौजूदा टावर नई कंपनियों को कार्यालय स्थापित करने, रोजगार पैदा करने और इन शहरों में नागरिकों के लिए बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। वरंगल एक वैकल्पिक आईटी हब के रूप में बदल रहा है। टैंक महिंद्रा, साइंट, जेनपैक्ट और अन्य कंपनियों ने पहले ही यहाँ अपनी इकाइयाँ स्थापित कर ली है और मंत्री ने यहाँ आईटी वार्षिक रिपोर्ट 2022-2023 जारी करने के बाद कहा है कि इसी तरह से 4 नई कंपनियाँ एलटीआई, माइंडट्री, जेनपैक्ट, एचआरएच, नेक्स्ट और हेक्सॉट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को हनमकोंडा में लॉन्च किया गया। तेलंगाना के टी हब से प्रभावित होकर महाराष्ट्र सरकार एक एम हब स्थापित कर रही है। पिछले 1 साल में टी हब ने राज्य में उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को सक्रिय रूप से बढ़ावा देकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपने त्वरक कार्यक्रमों के माध्यम से टी हब ने 13 सुपर मीटर्स सहित 112 मीटर्स की विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए 72 स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया। फॉक्सकॉन की अध्यक्ष यंग लियो ने रामाराव की उपस्थिति में टी वर्कर्स का उद्घाटन किया है। तेलंगाना की गति और परिष्कृत उत्पादों को विकसित करने के अपने दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर फॉक्सकॉन ने दुनिया के सबसे बड़े प्रोटोटाइप केंद्र टी वर्कर्स का समर्थन करने के लिए एक प्रौद्योगिकी ग्रेड एसएमटी लाइन दान करने की घोषणा करी।
तेलंगाना राज्य इलेक्ट्रॉनिक नीति 2016 में राज्य देश में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग ESDM परिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए लागू हुई थी। राज्य ने 2022 से 2023 में 38,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित किया और जिसमें 32,000 लोगों की रोजगार सृजित क्षमता इलेक्ट्रॉनिक और ऊर्जा भंडारण क्षेत्रों में थी। 2014 में इलेक्ट्रॉनिक्स, EV और ऊर्जा भंडारण क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण समूह और अन्य अधिसूचित पार्कों में 66,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार सृजित किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थापित तेलंगाना एकेडमी फॉर स्किल एंड नॉलेज टास्क एक गैर लाभकारी संगठन है जो युवाओं को कुशल बनाने और उन्हें अधिक रोजगार परक बनाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ काम करता है, जिससे राज्य में बेरोजगारी दर पर अंकुश लगता है और इसी के तहत अब तक 1.8 लाख छात्रों को प्रशिक्षित किया गया और 2250 संकाय सदस्य कुशल थे। 125 प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित किए गए और 30,961 छात्रों को नौकरी मिली है। टास्क ने चंचलगुड़ा में एक समुदाय कौशल केंद्र और आसिफाबाद में एक आदिवासी कौशल केंद्र शुरू किया। टास्क क्षेत्रीय केंद्र हैदराबाद, वरंगल, करीमनगर, खम्मम और सिलसिला केंद्रों के अलावा हनमकोंडा, महबूबनगर में स्थापित किए गए हैं।